Welcome dear students. In today's video, we will discuss about the emission and absorption spectra and the hydrogen spectrum series. Let's start. So here you are, the emission and the absorption spectra. So basically, हमें यहाँ सबसे पहले जो है तीन आपके इम्पोर्टेंट जो यहाँ पॉइंट्स लिखे हैं उनको हमें स्टडी करना पड़ेगा. First of all, that is the spectroscope. The next one, that is the spectrogram. And the next one, that is spectroscopy. So basically, this spectroscope is an instrument, and spectrogram, that is actually the spectra which is obtained at the photographic film. And the spectroscopy, it is the basically branch of science where we have to study about the spectrum, right? So this is all about these small, you can say, topics. Basically, spectroscope, where we have a source. This is suppose source, right? And there is a prism, and one more thing, that is the telescope, which has been replaced by the photographic film, like this. So whenever the light actually enters from the source into you can say prism, then it will give the kind of, you can say, dispersion, and you will get the chromatogram over the photographic plate. This is the photographic plate. Okay, this is the whole instrument which has been called spectroscope. Well, you see that here is the source, and of course a prism, and this is the photographic plate. Whenever the sunlight or any kind of, you can say, light, the source light enters in the prism, it will split into the number of colors or different kind of radiation which is actually captured by the photographic plate. So the whole instrument is called the spectroscope, and there is the photographic plate where we get the spectrogram, and the science where we have to study such kind of, you can say, spectra, that is called spectroscopy. Well, now we see the emission and absorption spectra. Let's see that the spectra that will be classified into two types. The first is the emission spectra, and the next one, that is the absorption spectra. Basically, emission spectra is also further classified into two types. The first one, that is the continuous spectra, and the next, that is the line spectra. Well, we will start first of all the emission spectra. Here you can see the emission spectra. Well, first of all, we'll see the definition. Well, when the radiation emitted from source, that means sun, or by passing electric discharge through a gas at low pressure, or by heating some substances to high temperature,
It is passed through the prism and then received on the photographic plate. The spectrum is called the emission spectra. So basically ये इसका complete definition हो गया. यहाँ पर definition में एक बहुत simple सी बात नज़र आ रही है, वो ये है कि यहाँ हमें एक source चाहिए, और source जो है वो आपकी हो सकता है चाहे सन या कोई आपके ऐसा बल्ब जिसमें कोई गैस जो है लो प्रेशर पर आपके भरी हुई है और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है हम क्या बोलते हैं उसमें कर रहे हैं. इसका मतलब कोई बल्ब को हम कंसीडर कर सकते हैं. और साथ में जो है हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस है उसको हम हीट करें एट हाई टेम्परेचर, राइट. तो ये सोर्सेज आपके हो सकते हैं. अब इन सोर्सेज से जो लाइट प्रोड्यूस हुई उस लाइट को हम प्रिज्म से पास करें, और प्रिज्म से पास करने के बाद में वो फोटोग्राफिक प्लेट पर हमें उसका एक स्पेक्ट्रम मिले. तो जिस स्पेक्ट्रम को हम यहाँ कंसीडर करने वाले हैं वही होगा आपके इमिशन स्पेक्ट्रम या इमिशन स्पेक्ट्रा. अब इमिशन स्पेक्ट्रा जो होता है वो ठीक दो तरह से हम समझ सकते हैं. फर्स्ट है अपने पास जिसको बोलते हैं आपके कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, और जो सेकंड है जिसको बोलते हैं हम लाइन स्पेक्ट्रा. वेल, द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा. वेल, इसको हम पढ़ते हैं. आइए देखते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा. और ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा कैसा होगा. इसमें हमने क्या किया है, एक सोर्स जो है यहाँ लिया है. सपोज कीजिए ये सोर्स है और यहाँ हमने एक स्लिट जो है लगाया है. वो स्लिट लगाने का एक रीज़न यही है कि जितने भी रेज हैं वो आपके रुक जाएं और कुछ सेलेक्टिव और स्ट्रेट मूविंग जो रेज हैं वो आपके हमें मिल पाए, राइट. अब इस सोर्स के जस्ट नेक्स्ट जो है हमें लगाना है यहाँ पर, जिसे हम कह रहे हैं आपके प्रिज्म. तो यहाँ पर आप प्रिज्म जो है लगाएंगे, और जैसे ही प्रिज्म से लाइट पास होगी तो बेसिकली इससे जो फोटोग्राफिक फिल्म हमने राइट साइड में लगाया है वहाँ पर कुछ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा हमें मिलेगा. अब कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा का मीनिंग क्या है. जैसे सनलाइट जो है अगर प्रिज्म से पास करेंगे तो डिस्पर्जन होगा. तो डिस्पर्जन के बाद में जो है 7 कलर्स हमें नजर आता है, राइट. और 7 कलर कौन कौन से होते हैं, वो विबग्योर, राइट. तो कुछ इस तरह से क्या बोलते हैं 7 कलर्स नजर आते हैं और ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा होगा. अब कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा का मीनिंग है कि इसमें कोई बीच में ऐसा डार्क लाइन नहीं आएगी. अब यहाँ इसमें प्रेजेंट हमने जैसे किया है इसमें तो आपको नजर आ रहा है कुछ डार्क लाइंस, राइट. उसमें कंटिन्यूअस आपको कलर्स जो हैं वो मिलेंगे. जैसे रेनबो में कलर्स मिलते हैं, तो रेनबो में कलर्स जो है वो कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस हैं, राइट. ऐसा नहीं है कि है ना क्या बोलते हैं आपके इंडिगो के बाद में जो ब्लू कलर आ रहा है उसके बीच में कोई लाइन आ रही है, नहीं. तो वो कंटिन्यूअस जो आपके स्पेक्ट्रा है आपको मिलेगा, राइट. तो एमिशन स्पेक्ट्रा में कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा को अगर स्टडी करना है तो हम बहुत सिंपल से आपके ये कंसेप्ट ले सकते हैं. सोर्स की जो आपके लाइट है उसको हम प्रिज्म से पास करें तो डिस्पर्जन होगा. डिस्पर्जन से आपको जो रेडिएशन यहाँ पर मिलने वाला है फोटोग्राफिक फिल्म पर, उसका जो इम्पैक्ट मिलने वाला है, ठीक है, उसमें आपको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा मिलेगा. क्लियर. So this is all about the continuous spectra. Now we move on to the next spectra that is called the line spectra. आइए देखते हैं लाइन स्पेक्ट्रा कैसा होगा. तो लाइन स्पेक्ट्रा को समझने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर एक सोर्स हमने लिया है. ये रहा सोर्स, और सोर्स में बेसिकली हमने एक बर्नर जो है यूज में लिया है. ये बर्नर हो गया, और यहाँ पर इसके टिप पर हमने एक सोडियम पीस जो है या सोडियम मेटल का एक हमने पीस ले लिया है, राइट. ओके. इसको हम एक निडल की हेल्प से
आपके हीट करेंगे। तो बेसिकली ये जो फ्लेम है बुनसन बर्नर का, वो सोडियम मेटल को क्या कर रहा है, आपके हीट कर रहा है। क्लियर है। अब ऐसा करने के बाद में कुछ यहाँ से आपकी रेज निकलेंगी और वो रेज जो है बेसिकली पास होंगी एक प्रिज्म से, और जैसे ही प्रिज्म से पास होंगी तो आपको इस फोटोग्राफिक फिल्म पर एक स्पेक्ट्रोग्राम मिलेगा। और वो स्पेक्ट्रोग्राम जो होगा, ये स्पेक्ट्रोग्राम जैसे मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, कुछ इस तरह का होगा। ये यहाँ पर जो आपको स्पेक्ट्रोग्राम में कलर्स की बहुत थिन लाइन आपको मिलने वाली है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपके ये दो कलर जो है, आपके ये पैच आपको जो नज़र आएगा बहुत कुछ इस तरह से, देखें तो इसको इस तरह से नज़र आएगा, कुछ ऐसे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ब्रॉड कर देता हूँ तो देखते हैं कैसे नज़र आएगा। यहाँ पर लाइन स्पेक्ट्रा, इसमें आपको जो कलर नज़र आएगा उसका एक बहुत स्मॉल पोर्शन नज़र आएगा, और एक कुछ इस तरह से जैसे मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये जो पैच आप देख रहे हैं ये डार्क पैच है, राइट। और फिर इसके बाद में जो है एक और कलर का एक आपके लाइन मिलेगा। क्लियर है। तो डार्क पैच जो होंगे वो बड़े होंगे, और ये कलर्ड जो पैच है, ये जो मैंने जो ब्लैंक शो किया है ना, वो आपके क्या है, ये कलर्ड पैच है। अगर कोई फर्दर क्या बोलते हैं, कोई कलर अगर फॉर्म हो रहा है तो वो भी कुछ इसी तरह से होगा। फिर इसके बाद में जो है डार्क पैच आएगा, ये क्लियर, कुछ इस तरह से। और यहाँ पर एक और थिन लाइन जो है आपको मिलेगी कलर का, राइट। आई होप सो क्लियर हो गया होगा, अब ये बेटर समझ में आ जाएगा आपको। तो सोडियम मेटल हमने लिया है, उसको हमने हीटअप किया है। हीटअप करेंगे तो क्या होगा, इससे जो लाइट प्रोड्यूस हुई, तो बेसिकली वो लाइट जो है आपके, यानी येलो लाइट जो है, जैसे प्रिज्म से पास आउट होगी तो वो आपके टू कलर्स में आपकी ये डिवाइड हो जाएगी, या इस तरह से क्या बोलते हैं, स्मॉल थिन लाइंस जो है कलर्स की हमें मिलेंगी, राइट। और ये सेपरेट करेंगे आपके ये डार्क पैचेस। कुछ इस तरह से क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम को हम समझ सकते हैं। ऑलराइट, तो इनको एक बार अगर आप दोबारा देखना चाहें तो आप एक बार रिकैप कर सकते हैं इस चीज़ का, और वीडियो को रिवाइंड करके आप चेक कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ वी मूव्स ऑन टू द नेक्स्ट portion of the spectra, that is called the absorption spectra. आइए देखते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो है उसको किस तरह से समझा जा सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक सोर्स लिया हमने, तो कोई भी एक वाइट लाइट सोर्स लिया, बल्ब ले लीजिए या सनलाइट ले लीजिए जैसा आप चाहें। तो उसके बाद में जो है हमने इस बल्ब के आगे जो है स्लिट रखनी है। स्लिट इसलिए रखा जाता है कि एक पर्टिकुलर आपके रेस्ट ऑफ पोर्शन जो है इसका आपके हाइड हो जाए, और स्ट्रेट फॉरवर्ड जो रेज हैं वो आपको स्ट्रेटली मिल जाए, राइट। तो ये आपके स्लिट है, स्लिट का फंक्शन हो गया। तो ये सोर्स, स्लिट, और इसके जस्ट नेक्स्ट जो है हमें एक एब्जॉर्प्शन के लिए, यानी कि एब्जॉर्बिंग एक मटेरियल हमें तैयार करना पड़ेगा, एक सोल्यूशन हमें तैयार करना पड़ता है। और वो सोल्यूशन जो होता है वो डाइल्यूट सोल्यूशन जो है हम लेते हैं, राइट। तो बेसिकली क्यूवेट एक इस तरह का एक कंटेनर आता है, उसमें हम ये आपके सोल्यूशन बनाते हैं। तो बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन जो है हमको यहाँ लेना होगा, और वो जैसे सपोज कीजिए हमने लिया है यहाँ पर डाइल्यूट सोल्यूशन हमने लिया है, दिस इज द डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ व्हाट, NaCl। तो NaCl का यहाँ पर आप सोल्यूशन आप ले लीजिए, राइट। तो लाइट सोर्स, स्लिट इज देयर, और यहाँ हमने NaCl का सोल्यूशन ले लिया। अब NaCl के सोल्यूशन से जैसे ही ये लाइट जो है पास होगी आगे, और उससे जो फर्दर लाइट निकलेगी उसको हम प्रिज्म से पास आउट करेंगे, ऑलराइट।
और प्रिज्म से पास होने के बाद में वापस से हमें क्या बोलते हैं, यहाँ पर इस फोटोग्राफिक फिल्म पर स्पेक्ट्रोग्राम मिलेगा। अब वो स्पेक्ट्रोग्राम किस तरह का होगा, किस तरह से क्या बोलते हैं आपको नजर आएगा फोटोग्राफिक फिल्म पर, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर इसको देखूं तो यहाँ कुछ इस तरह से नजर आएगा, गौर से देखिएगा। बेसिकली यहाँ पर आपको जो ये सपोज कीजिए एक कलर का पैच है, ये एक पर्टिकुलर कलर का पैच है, ऑलराइट। तो यहाँ पर एक थिन लाइन जो है, डार्क थिन लाइन जो है आपको मिलेगी, क्लियर। फिर इसके बाद में क्या हो जाता है, दूसरा कलर आ जाता है, ये सेकंड कलर आ गया, और फिर इसका क्या हो जाएगा, आपके एक और डार्क थिन लाइन मिलेगी कुछ इस तरह से, फिर एक और कलर आपकी लाइन आ गया, फिर इसके बाद में इस तरह से थिन लाइन आपको मिलेंगी, क्लियर। इट मीन्स यहाँ जो ये जो आपके बड़ा जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है वो जो होगा वो आपके किसका होगा, कलर का होगा, राइट। तो ये बेसिकली जो है आपके डिफरेंस है इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर, राइट। जैसे मैंने इसको डार्क शेड दे दिया है, फिर एक ब्लैक लाइन आ गई है, फिर कोई दूसरा कलर आ गया है, आपके इंडिगो आ गया है, फिर एक डार्क लाइन आ गई है, फिर इसके बाद में ब्लू कलर आ गया है, फिर डार्क लाइन आ गई है, कुछ इस तरह से क्या बोलते हैं ये आपको स्पेक्ट्रा मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ हुआ क्या कि यहाँ पर सनलाइट जो है जैसे क्या बोलते हैं पास हुई किसमें से, इस NaCl सोल्यूशन से, तो NaCl सोल्यूशन जो है वो क्या करेगा, कुछ एनर्जी जो है इसके जो आपके एटम्स हैं वो कुछ एनर्जी जो है सनलाइट से या फिर आपके सोर्स ऑफ एनर्जी से क्या करेंगे, कैच करेंगे, और कैच करने के बाद में यानी एब्जॉर्ब करने के बाद में जो है जो लाइट आपके प्रोड्यूस करेंगे वो लाइट जो है पास होगी किससे, आपके प्रिज्म से, और प्रिज्म से पास होने के बाद में हमें स्पेक्ट्रो फोटोग्राम जिसको हम बोलते हैं आपके, वो हमें मिलेगा फोटोग्राफिक प्लेट पर, और वो कुछ इस तरह का होगा। तो थिन लाइंस यहाँ पर कौन सी होंगी, आपके डार्क वाली, डार्क लाइंस जिनको हम बोल रहे हैं। लेकिन जो एमिशन स्पेक्ट्रम जो था उसके अंदर क्या था, आपके चेंज था, उसके अंदर क्या चेंज था, उसके अंदर जो कलर पैच जो था उसकी थिन लाइंस थी। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन व्हाट, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आइए देखते हैं अगला टॉपिक जो है आपके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज जो है वो किस तरह से फॉर्म होती है उसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वेल, इसमें एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कह सकते हैं, हाइड्रोजन गैस के जो एटम्स हैं, राइट, हाइड्रोजन गैस का अगर मैं एटम अगर फॉर्म करता हूँ तो ये हो गया उसका न्यूक्लियस, राइट। और यहाँ जो ये सर्कुलर जो पाथवे हम बना रहे हैं ये है इसकी शेल्स, राइट। कुछ नंबर ऑफ शेल्स में जैसे यहाँ पे फॉर्म किए, शेल नंबर 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 एंड सो ऑन अप टू व्हाट, इनफाइनाइट, क्लियर। तो ये आपकी क्या बोलते हैं हाइड्रोजन का एटम सपोज कीजिए रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है नेचुरली क्या बोलते हैं फर्स्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन मिलने वाला है, क्लियर। अब हम क्या कर रहे हैं, इस एटम को या इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहे हैं, और एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वो शिफ्ट होकर कहाँ जाएगा, इस सेकेंड वाले में या सेकेंड शेल में। हो सकता है ये आपके थर्ड वाले में चला जाए, इतनी एनर्जी दिया जाए कि थर्ड में चला जाए, और ये भी तो हो सकता है ये फोर्थ में आ जाए, ये भी हो सकता है ये फिफ्थ में आ जाए, राइट, एंड ऑफ कोर्स सिक्स में आ जाए। तो इस तरह से क्या बोलते हैं हम इनफाइनाइट तक तो नहीं पहुंचाना है हमें, क्योंकि फिर वो तो आउट ही हो गया एक तरह से इलेक्ट्रॉन जो है एटम से। तो सपोज कीजिए हमने 6 7 8 तक जो है आपके इलेक्ट्रॉन को पहुंचा दिया, सपोज कीजिए 6 तक हमने पहुंचाया, क्लियर है। तो बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पर इस एटम को जब हमने एक तरह से एक्साइट किया, बेसिकली इसको हमने हीट प्रोवाइड की, तो हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन जो है अपने जो लो एनर्जी लेवल में था वो अपर एनर्जी लेवल में चला गया, क्लियर।
जब वापस से हाई एनर्जी लेवल या फिर आपके अपर एनर्जी लेवल से लो लेवल में जब आता है, क्लियर है, चाहे 6 से फर्स्ट में आए, चाहे 5th से फर्स्ट में आए, 4th से फर्स्ट में आए, कहीं भी आए, तो एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं आपके रेडिएशन यहाँ पर वो एमिट करता है। इसी से ही फॉर्म होती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज। चलिए इसको देखते हैं किस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो हियर वी गो, द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज। आइए देखते हैं, ये है हाइड्रोजन का एक एटम, और इस हाइड्रोजन के एटम में हमने क्या किया है कि इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट शेल में था इसको हमने पहुंचा दिया है लास्ट, यहाँ पर जो है 8th, जैसे मैंने शेल बनाई हुई है इसमें हमने पहुंचा दिया है। अब जो सीरीज फॉर्म होंगी वो कैसे होंगी, इनको हम देखते हैं किस तरह से बनेंगी। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन अगर 8th शेल में है और 8th शेल से फर्स्ट शेल में अगर एंटर हो रहा है, यानी कि ये आपके 8th से फर्स्ट में गया, क्लियर है, या फिर 7th से फर्स्ट में गया, या फिर 6th से फर्स्ट में गया, 5th से, 4th से, 3 से या 2 से अगर क्या बोलते हैं ये फर्स्ट शेल में गया है, राइट। तो अपर एनर्जी लेवल जो है इसका, जैसे हम बात करें तो मिनिमम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये हो सकता है, और मिनिमम जो एनर्जी लेवल जिसमें एंटर हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं आपके N1, दैट इज 1। और यहाँ N2 का वैल्यू यानी कि जो अपर एनर्जी लेवल है वो मिनिमम कितना हुआ आपके 2, राइट, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, राइट। तो इलेक्ट्रॉन अपर एनर्जी लेवल से यस फर्स्ट शेल में अगर एंटर होता है, क्लियर है, इससे जो सीरीज फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं आपके लाइमन सीरीज। इसको हम बोलेंगे कौन सी सीरीज, यस इट इज लाइमन, इट इज लाइमन सीरीज, दिस इज कॉल्ड लाइमन सीरीज, क्लियर। अगर हम बात करें कि सेकेंड सीरीज के लिए, जो सेकेंड सीरीज होती है वो आपके ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन आउटर से किस में आना चाहिए, सेकेंड में आना चाहिए। अब देखिए सेकेंड शेल ये रहा, ठीक है, तो मैंने इसको यहां मेंशन कर दिया, क्लियर है। तो आउटर से सेकेंड में आ रहा है, अब आउटर 5th, ये भी तो हो सकता है ना ये 7th वाला, आप ये भी हो सकता है आपके 6th वाला, 5th वाला भी हो सकता है, लेकिन आना चाहिए किसके अंदर, सेकेंड के अंदर। ये हो गया अपने पास में 4th और ये हो गया 3rd, क्लियर है। ये जो आपके पैच क्रिएट हुआ इसके अंदर N1 का वैल्यू हो जाएगा 2, राइट, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इन द सेकेंड शेल। और N2 का वैल्यू जो होगा यहाँ पर आप ले सकते हैं, अब मिनिमम कौन सा हुआ, 3rd से सेकेंड में आ रहा है ना, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, राइट। ये जो सीरीज बनी, इस सीरीज को हम लोग कहेंगे बामर सीरीज, इस सीरीज को कहेंगे बामर सीरीज, क्लियर है। ये हो गई सीरीज नंबर 2। अब इसके बाद में हम ले सकते हैं आपके सीरीज नंबर 3, जिसको बोलते हैं पार्शियन सीरीज। अब पार्शियन सीरीज में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आउटर से किसके अंदर आना चाहिए, 3rd में आना चाहिए, क्लियर है। तो आइए 3rd में पहुंचाते हैं, ये लीजिए, ठीक है, आउटर से 3rd में आया, ये भी आउटर है इसके लिए, लेकिन आना चाहिए 3rd में, कुछ इस तरह से, लाइक दिस, क्लियर है। यहाँ पर जो पैच फॉर्म हुआ इसके लिए N1 का वैल्यू कितना हुआ, N1 का वैल्यू हुआ 3, N2 का वैल्यू होगा आपकी 4, 5, 6 एंड सो ऑन, कुछ इस तरह से, राइट। अब इस सीरीज को हम बोलेंगे पार्शियन सीरीज, पार्शियन सीरीज, क्लियर। आइए देखते हैं एक और सीरीज फॉर्म होती है, whenever the electron actually comes from the outermost shell into what, 4th energy level, ये 4th में आ गया, देखिए, क्लियर। अब
फोर्थ में ही आना है। अब आउटर मोस्ट शेल जो है इसके जैसे मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पर कुछ इस तरह से, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन है वो फोर्थ शेल में आ रहे हैं। क्लियर है। यहाँ पर जो एक पैच फॉर्म हुआ इसके लिए N1 का वैल्यू हुआ कितना 4, N2 का वैल्यू हो गया क्या 5, 6, 7 एंड सो ऑन। राइट। ये जो सीरीज फॉर्म हुई इसको हम बोलते हैं आपके ब्रैकेट सीरीज। ये है ब्रैकेट series. Clear? This is the bracket series. One more series we have, and where the electron is coming in fifth shell. Let's see that the fifth shell. This is the fifth shell. This is the fifth shell. Here we go. Like this. All right. कुछ ऐसे। और यहाँ पर ये जो पैच आपके फॉर्म होगा उसके लिए N1 का वैल्यू हो जाएगा 5, N2 का वैल्यू होगा 6, 7, 8 एंड सो ऑन। राइट। इस सीरीज को जो है हम बोलते हैं आपके फुंड सीरीज। ठीक है, इस सीरीज को बोलेंगे फुंड। क्लियर। कुछ इस तरह से हम इन सीरीज को यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ये 5 सीरीज बेसिकली फॉर्म होती है। एक सीरीज और भी बनती है जिसको हम बोलते हैं हैम्प्री सीरीज। ठीक है, तो उसमें आपके क्या होगा, N1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 और N2 का वैल्यू 7, 8, 9 लाइक दैट। ओके, so basically 5 series actually form whenever the electron enters in different, you can say, energy level. The initial level is different, that will be no doubt we can say the 5 series, the Lyman, Balmer, Paschen, Brackett and Fund. Clear? बेसिकली यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज अब जो आती है वो ये आती है बेटा कि लाइमन सीरीज जो होती है, लाइमन सीरीज में आप हमेशा ध्यान रखिएगा यूवी जोन मिलेगा, यानी अल्ट्रावायलेट जोन, यानी इस बहुत ज़्यादा क्या फ्रीक्वेंसी की आपकी रेडिएशन मिलेंगे। तो यूवी जोन की जो भी आपकी रेज है वो यहाँ पर मिल सकती हैं। क्लियर। बामर सीरीज जो होती है इसके अंदर आपको सारे के सारे जो विजिबल कलर्स हैं, राइट, वो आपको मिल जाएंगे। ये सारे के सारे विजिबल कलर्स जो है बामर सीरीज में मिलेंगे। क्लियर। और पाशन, ब्रैकेट और फुंड जो सीरीज है इन सब में आपको मिलेगा इंफ्रा रेड, सब में इंफ्रा रेड। क्लियर। सब में, इन सब में आपको इंफ्रारेड आपके जोन मिलेगा। ऑलराइट, जिनका वेवलेंथ क्या होता है आपके ज्यादा होता है। ठीक है, जो मैंने आपको कुछ आई थिंक प्रीवियस वीडियोस के अंदर समझाया था। क्लियर है। तो दिस इज द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज से रिलेटेड जो है एक न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला हमारे पास में रेडी है, जिसमें हम वेव नंबर और उसको हम स्टडी कर सकते हैं कि किस तरह से वेव नंबर जो है आपके कैलकुलेट किया जा सकता है। आइए जरा देखते हैं कि वो फॉर्मूला क्या है और किस तरह से क्या बोलते हैं इसके अंदर वैल्यूज को हम पुट कर सकते हैं। आइए देखते हैं वेव नंबर जो है, वेव नंबर जिसको हम न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। और न्यू बार जो होता है ये आई होप सो आपको क्लियर होगा, 1/λ होता है। राइट। तो यह न्यू बार यानी कि आपके वेव नंबर हमेशा इक्वल होगा आपके r, दैट इज द Rydberg कांस्टेंट, एंड there is the formula 1/n1 square minus 1/n2 square। कुछ इस तरह से फॉर्मूला जो है हम मेंशन कर सकते हैं। So you know that the nu bar is the wave number, r is the Rydberg constant, और ये जो कांस्टेंट है इसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू जो होती है, अगर हम r का वैल्यू यहाँ पर कंसीडर करें तो वो आता है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। तो कुछ इस तरह से हम इसको मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर आपके N1 का वैल्यू जो है ये आपकी कौन सा होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन आपके एंटर कर रहा है। ठीक है, तो लो एनर्जी व्हाट लेवल। क्लियर।
N2 जो होगा वो क्या होगा, आपके जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, राइट, दैट इज हायर energy level, right? So basically by using of this formula we can calculate the wave number, और wave number calculate कर सकते हैं तो साथ में आप calculate कर सकते हैं क्या, lambda, right? because nu bar is equal to 1 upon lambda, ठीक है, तो lambda यानी wavelength को भी आप calculate कर सकते हैं, right? ओके, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।